Good morning, student. My name is Mangalara, your math teacher. I hope you all are fine at home and doing study continuously without any disturbance. Student, in the previous classes, I have discussed about the complex number, in which I have discussed about imaginary number iota. After that, I have discussed about algebra of the complex number, in which I have discussed about addition, multiplication, subtraction, and division. Okay. After that, student, I have seen properties of addition and multiplication, in which they are the two most important is that additive identity, additive inverse in the case of addition, and multiplicative identity and multiplicative inverse in the case of multiplication. And student, remember, z to the power minus 1 is given by 1 by z, which is multiplicative inverse and known as only inverse. Are you getting me? After that, student, I have started the two most important word. One is modulus of the complex number and second is conjugate of the complex number. Okay, so I have defined already what is the modulus and what is the conjugate of the complex number, but once again I am going to start from this. So student, let us ready, and now please note all the things which I am going to write in your notebook with the systematic order. Okay, bacha party, let us start. See student, the word modulus. Okay, modulus and conjugate. Modulus and conjugate of कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, तो बच्चा पढ़ी ये ध्यान से देखो, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी है. मॉडुलस विल बी डिनोटेड बाय sorry, mod z is equal to under root a square plus b square, and here see z equal to a plus ib. This is the complex number, and z bar is the conjugate. Z bar is the conjugate and defined by a minus ib. मैंने आपको बताया भी था, replace I with minus I. Are you getting me? ओके बच्चा पढ़ी. नाउ सी, हमने एग्जांपल भी लिया था फॉर वी आर टेकिंग z इक्वल टू 2 minus 3i. If you want to find the modulus of the complex number, that will be 2 square, that is 4, 3 square, that is 9, this is root 13, and बच्चा पार्टी हाँ जी, z bar, that is the conjugate of the complex number, will be 2 plus 3i. रिमेंबर, मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था. अब हमारा जो मेन टॉपिक था आज का, इट वाज प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके स्टूडेंट, सो राइट properties of modulus of complex number. Properties of modulus of complex number. Right, properties of modulus of complex number में आपके पास there are the four property. First is student, this is the mod of minus z which is equal to z. Second is student, mod z equal to 0 if and only if and only if का symbol है, z will be 0. Third property is student, mod of z1 into z2 equal to mod z1 into mod z2. And fourth is student, mod of z1 by z2 is equal to mod of z1 upon mod of z2. कंडीशन होना चाहिए बच्चा, z2 should not be equal to 0. Are you getting me? This is the properties of modulus of complex number. Properties of modulus of complex number. Okay student, proofs are very easy. It is given in your NCERT book, so I'm not going to waste your time, है ना. आप एक बार कर लेना. If you feel any problem in the proof of all these formulas, then you ask me. Okay, are you getting me? तो चलो नेक्स्ट है बच्चा पार्टी आपके पास राइट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. प्रॉपर्टीज ऑफ conjugate of complex number.
देख लो बच्चों, यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टी है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़, हाँ जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है जेड जेड आई मीन सिर्फ जेड बार होल बार इक्वल टू इट बिकम जेड। ठीक है, आप समझ पा रहे हो। यदि आपके पास कोई नंबर 2+3i है, दिस इज सपोज जेड है, तो नाउ द जेड बार बिकम 2 - 3i एंड अगेन वी आर गोइंग टू टेक द कॉन्जुगेट, तो इस पर होल बार लगाएंगे एंड इट बिकम 2+3i विच इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। एंड स्टूडेंट सेकेंड इज z1 plus z2 whole bar will be equal to z1 bar plus z2 bar, and third is student z1 z2 bar equal to z1 z2, and fourth is student z1 upon z2 whole bar will be equal to z1 bar upon z2 bar. Are you getting me? And the next is that is the fifth. I'm writing here bachcha party. Fifth is mod of z bar equal to z modulus of z complex number. And next student 6, z into z bar equal to mod of z square. Okay, fine. And the next student, that is the seventh, z inverse. आपको समझ में आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है z बार अपॉन मॉड ऑफ z स्क्वायर। डन बच्चा पार्टी। तो देखो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अभी जो मैंने देखा बच्चा पार्टी, लिसन में वंस अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, ट्राई टू मेक द कॉन्सेप्ट इन योर माइंड। तो ये क्या है, आप यदि किसी नंबर का कॉन्जुगेट लिए हैं एंड वंस अगेन यू आर गेटिंग द कॉन्जुगेट, तो आपको फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर z मिल जाएगा। दिस इज द ऑब्वियस है ना। क्या करना है, z1 + z2 को ऐड करके कॉन्जुगेट लो, या दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट करके ऐड करो, नो इफेक्ट। दिस इज z1 × z2 इक्वल टू z1 एंड z2 है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें बच्चा पार्टी। यहाँ पे भी आप कंडीशन ये डालेंगे, z2 बार शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एंड नाउ सी प्रॉपर्टी नंबर 5, 6 एंड 7। तो यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड 7 के बारे में थोड़ा डिटेल कर देता हूँ, और बाकी सारी प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। तो मैं आपको एक बार सजेस्ट करूँगा कि आप बुक में देख लेना। ओके, तो लेट अस स्टार्ट बच्चा, ध्यान से देखो आप लोग। देखो फॉर एग्जांपल z इक्वल टू a प्लस IB आपने एज्यूम कर लिया, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय z बार एंड इट विल बी a माइनस IB। फाइन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप स्टूडेंट इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी वेरीफाई कर लो, कोई भी यार। जैसे अब इसी को देखना है, मान लो फर्स्ट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू वेरीफाई, तो क्या करेंगे, z बार and again we are making bar here in the right hand side, again I am writing a minus IB whole bar, and we know we have to replace I by minus I, so it become a plus IB, that is z। कुछ नहीं करना है बच्चा पार्टी, आपको सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल जो है, जैसे मान लो समवन वांट टू प्रूव दैट कि सर सेकेंड वाला या थर्ड वाला दिखा दो, कुछ नहीं यार, एकदम सिंपल प्रोसेस है। कैसे करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड, z1 दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ आपको एज्यूम करना हुआ। लेट z1 इक्वल टू a1 प्लस IB1 है ना, z2 इक्वल टू a2 प्लस IB2, और आपको पता है कॉन्जुगेट इसका ले लेंगे हम लोग। नाउ टेल मी अबाउट z1 प्लस z2 स्टूडेंट, z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा, रियल टू रियल ऐड करेंगे, a1 प्लस a2 एंड इमेजिनरी टू इमेजिनरी I कॉमन कर लेंगे, b1 प्लस b2। ओके स्टूडेंट, आर यू गेटिंग मी? नाउ सी द सिंपल वे है ना, जस्ट वेट बच्चा। ओके स्टूडेंट, आर यू गेटिंग मी? नाउ सी, अब अपने को क्या करना है बच्चा पार्टी, सपोज कि वी आर गोइंग टू टेक द कॉन्जुगेट z1 प्लस z2 बार। तो अब आप देख लो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा z1 प्लस z2 की वैल्यू है, z1 प्लस z2 की वैल्यू है। बस इमेजिनरी पार्ट I की साइन को माइनस I करना है,
तो A1 प्लस A2 यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट, एंड माइनस आई एंड सी B1 प्लस B2 हो जाएगा। और आप इसी को बस अरेंज कर दो, आपका रिजल्ट हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 माइनस आई B1 माइनस आई B2, और अलग अलग लिख लो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर अलग रखो, A1 माइनस आई B1, है ना, एंड राइट प्लस A2 माइनस आई B2। तो आप समझ पा रहे हो, आपके पास देखो यहाँ पे Z1 मैंने दिया है, तो नाउ अब समझ पा रहे हो कि Z1 बार कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, A1 माइनस आई B1। चलो बताओ Z2 बार कितना हो जाएगा, A2 माइनस आई B2। फाइन, तो ये क्या हो गया बच्चा पार्टी, ये Z1 बार, बीच में साइन प्लस है, एंड दिस इज द Z2 बार। तो यार जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस किया, आइदर मॉडुलस हो या कॉन्जुगेट का हो, उनकी प्रूफ बहुत आसान है। दैट्स वाई मैंने आपको सारे प्रूफ नहीं बताया, बट मैंने आपको कुछ आइडिया दे दिया। एक बार बुक से आप प्रूफ कर लेना, क्योंकि इसमें हम लोग चाहेंगे कि मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो जाए, ताकि जो चीज़ें आप खुद से कर सकते हो, क्या जरूरत है उसको यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का। और वेटिंग में चलो ठीक है बच्चा, अब देखो जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट, ये दो है ना, यहाँ पे इसको मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि ये दोनों एज ए फार्मूला मिसलेनियस में यूज़ होंगे। ये तो आप डिस्कस करके आए हो, कोई दिक्कत नहीं है, और ये अभी ये भी हम लोग डिस्कस किए थे, बट एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं डिस्कस, ध्यान से देखना। अच्छा जस्ट वेट, आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 20 सेकेंड, आप इसको नोट कर लो, देन आफ्टर आई विल मूव फॉर द प्रॉपर्टी नंबर, हाँ जी 6 एंड 7। आर वेटिंग मी, तो नोट कर लो बच्चों। Done बच्चा। Now see about property number 6, that is z into z bar equal to modulus of z square। कैसे होगा, लेट z इक्वल टू a प्लस आई बी, है ना, देन z बार कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, a माइनस आई बी, सिंपल मल्टीप्लाई है, z इंटू जेड बार दैट इज व्हाट, a प्लस आई बी into a minus ib। okay, now see a square minus b square, this is the formula, तो then a plus b a minus b, I mean ये हो जाएगा a square minus b square। okay, i square की वैल्यू कितनी होती है, -1, a square plus b square। और बच्चा पार्टी आप यहाँ पे देख लो, इफ दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर देन मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी व्हाट, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप आ जाओ यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस z स्क्वायर, है ना, सिंपल था। और रीडिंग में चलो ठीक है, फटाफट नोट करो स्टूडेंट, डोंट वेस्ट योर टाइम, है ना। आप देखो मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, रीज़न इज़ दैट कि आप साथ में नोट करते चलो, आपका नोट सिस्टमेटिक बनता चले, है कि नहीं। ओके बच्चा पार्टी, नाउ सी, नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट, आप फार्मूले के तौर पे इसका यूज़ भी करोगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, z टू द पावर -1 दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू z बार, आई मीन कॉन्जुगेट ऑफ द मॉडुलस का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल, क्या करोगे, z इक्वल टू a प्लस आई बी कंसिडर करोगे, एंड नाउ टेल मी z इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/z, दैट्स सिंपल, 1/z, 1 अपॉन a प्लस आई बी। देखो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि बच्चा ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है आयुर्वेदिक में, बट दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही है, लेकिन ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आई का ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस आई बी।
तो चलो अब यहाँ पे a माइनस आई बी का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, a माइनस आई बी, ओके। नाउ सी a प्लस आई बी, a माइनस आई बी, डन। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, a माइनस आई बी एज इट इज, है ना, एंड दिस इज व्हाट a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू प्लस वन माइनस वन होगी इसलिए प्लस हो जाएगा, एंड b स्क्वायर दिट इज व्हाट z बार अपॉन, दैट्स डन। ओके स्टूडेंट, सो नोट इट। तो मैंने आपका मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विद द प्रॉपर्टी आई हैव एक्सप्लेन्ड। नाउ वी आर मूविंग फॉर द एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। तो चलो हम लोग 5.1 कर लेते हैं, जहाँ पे कुछ एग्जांपल नंबर 5 एंड 6 है। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बट एवरी एग्जांपल आर वेरी इजी, है ना। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, राइट होमवर्क। होमवर्क इज एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6, बस 2 होमवर्क है आपके लिए, ओके राइट। चलो एक्सरसाइज 5.1 की बात कर लेते हैं। कहाँ पे चलते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 5.1। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 यार, इसमें जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, है ना। आई टू द पावर 9 प्लस आई टू द पावर 19, ऐसा क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया था। नाउ आई एम गिविंग यू टाइम, आप खुद से ट्राई करो, ट्राई योर सेल्फ, एंड आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 20 सेकेंड, डू इट फास्ट। चलो बच्चा, चलो नाउ योर टाइम इज़ ओवर, नाउ चेक योर आंसर, ठीक है। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे सही किए हैं, वेरी गुड। अब देखो आई टू दी पावर 9 को हम लोग कैसे लिख रहे हैं, आई टू दी पावर 4 इंटू 2 प्लस 1, एंड आई टू दी पावर 19 को आई टू दी पावर 4 इंटू 4 प्लस 3, है ना। तो मैंने क्या बताया, आई टू दी पावर 4m प्लस n, तो ये चीज़ हट जाएगी, क्या हो जाएगी, इट बिकम आई टू दी पावर 1 प्लस आई टू दी पावर 3, आई टू दी पावर 1 आई टू दी पावर 3 माइनस आई, एंड आंसर हो गया स्टूडेंट 0। आप इसको चाहो तो 0 प्लस आई इंटू 0 लिख सकते हो। अब आपसे इसमें कोई पूछ सकता है, दिस नॉट इज द एडिशनल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, योर आंसर विल बी व्हाट 0। इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, योर आंसर विल बी व्हाट 0। ओके डन स्टूडेंट। नाउ चलो ठीक है बच्चा, पार्टी वंस अगेन यू हैव टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 3, है ना। चलो पूरा 30 सेकेंड का टाइम दिया है ना, दिस इज फॉर यू, टाइम इज 30 सेकेंड, स्टार्ट। आई एम राइटिंग हियर क्वेश्चन नंबर 3 इज आई टू द पावर माइनस 39, आई टू द पावर माइनस 39, इसको आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, डू इट फास्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ योर टाइम इज ओवर, नाउ चेक योर आंसर। चलो ठीक है, आंसर मैच करो। आई टू द पावर 39, इज इट राइट? ओके, अब इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, आई टू द पावर 4 9 जा 36 प्लस 3, फिर ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन आई टू द पावर 3, है ना। 4 इंटू समथिंग विल बी ऑलवेज 1 बच्चा पार्टी, और आए क्या आई टू द पावर 3, और a प्लस आई बी में बच्चा आई नीचे नहीं होना चाहिए, आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर आई टू द पावर 4 एंड आई टू द पावर 4 की वैल्यू आई होती है। दिस इज योर आंसर। a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना हुआ तो 0 प्लस आई इंटू 1, दिस इज योर आंसर। ओके बच्चा पार्टी, आर गेटिंग मी? चलो ठीक है बच्चों, अब आप आ जाओ यार, क्वेश्चन नंबर 1 डन कर लिया आपने, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब आपको क्वेश्चन नंबर बहुत आसान दिख रहा है। नाउ वी आर मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। चलो ठीक है, वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर, मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट देखो ध्यान से,
This is given question number 8, z equal to 1 minus I to the power 4, 1 minus I to the power 4. आर गेटिंग मी बच्चा? अभी आपको फिर समझ आया कि ए प्लस आई बी का फॉर्म देखो यार, सिंपल देखो, ये मतलब क्या हुआ, ए का मतलब ए, बी का मतलब बी एंड आई मतलब आई. यहाँ पे टू दी पावर और कुछ है नहीं, है ना. ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, नो डाउट इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, हम ऐसा नहीं है कि नहीं बोल पाएंगे. दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर बट इट इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, करना क्या है इसमें, बस सिंप्लीफाई. तो चलो लेट अस ट्राई. ठीक है, मैं अपना आई मीन वंस अगेन आई एम गिविंग यू टाइम फॉर द 10 सेकेंड. देखता हूँ कितना जल्दी 10 सेकंड के अंदर कौन से बच्चे सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू अगेन सॉल्व इट. मैं इधर सॉल्व भी कर रहा हूँ, यू ट्राई योर सेल्फ. ओके, z इक्वल टू ओके स्टूडेंट, नाउ सी योर टाइम इज़ अप. अब ध्यान से देखो आप, आई थिंक कि बहुत सारे बच्चे कर भी लिए हैं, दे आर वेरी गुड. नाउ सी 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे -2i एंड यहाँ पे भी क्या बचेगा -2i. देखो बच्चे, अपने पास a प्लस बी होल टू द पावर 4 कोई फार्मूला नहीं है और उसको 4 बार मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा. तो आपने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया, है ना. स्क्वायर और स्क्वायर देखो, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, सिंपल. नाउ वी आर अप्लाइंग a माइनस बी होल स्क्वायर हियर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर हियर. ठीक है, और आफ्टर दिस वी आर गेटिंग -2i इंटू -2i. तो माइनस माइनस कितना होता है, इंटू करने प्लस 2 2 जा 4i स्क्वायर एंड दैट इज -4. Okay student, you can write like that, -4 plus 0i. if someone is asking to the real part of the complex number, ये additional question है, -4. imaginary part of the complex number, what, 0. if someone asking z bar, what, only -4. okay, क्योंकि यहाँ पे हमारा imaginary part है ही नहीं है, तो उसके बारे में कोई नहीं सोचना है. if someone asking about the mod of the z, what, real part square -4 square 16 plus 0, that is what, 4 आ गया. आर गेटिंग में बच्चा पार्टी. ठीक है, नाउ लेट अस नोटिस, बट नोट करो. चलो ठीक है स्टूडेंट, नाउ देयर आर ओनली 2 more questions in this exercise. this is the question number 9 and 10, that is completely based on the question number 8. तो ठीक है, 9 and 10 को खुद से ट्राई करना और बचे हुए क्वेश्चन को भी आप ट्राई योर सेल्फ करो. ओके, नाउ इन दिस वे माय क्लास इज ओवर. ओके स्टूडेंट, चलो थैंक यू, हैव ए नाइस डे.